خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی کا اولڈ پیپر کا دورہ، پرانی لائنوں کی تبدیلی کے کام کا جائزہ۔ مرتضی وہاب بولے فروری 2025 تک یہ لائنیں تبدیل کر لی جائیں گی۔ منصوبے پر 2.3 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کا عزم، جیالہ میئر ان ایکشن۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اولڈ پپری پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کیا اور لائنوں کی تبدیلی کے کام کا جائزہ لیا۔ سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب بولے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پپری میں لائنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپروومنٹ کے تعاون سے منصوبے کو فروری 2025 سے قبل منصوبے کو مکمل کر لیا جائے گا۔ کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ جو پائپس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم نے امپورٹ کر کے منگوایا ہے۔ 72 انچ ڈایا کے یہ پائپس ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے جنوری یا فروری تک اس تمام کام کو کمپلیٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے، جس سے تقریباً ڈیلی کا 20 سے 30 لاکھ گیلن پانی جو ہے جو ضائع ہو جاتا تھا ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ لائن لیکیج کے باعث یومیہ 30 لاکھ گیلن پانی ضائع ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پپری پمپنگ اسٹیشن پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے لائن لاسز میں بہتری آئے گی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا کیمرہ دکھائے، یہ ابھی ایکسکیویشن ہم نے کی ہے اور اس کے اندر یہ پانی موجود ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ کس طریقے سے پانی کی لیکیج تھی، جو کہ آپ کی بالکل پانی ضائع ہو رہا تھا، کسی کو فائدہ بھی اس کا نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب یہ نئے پائپ جو کہ ہم نے اس طرف رکھے ہوئے ہیں، جب یہ پائپ اس کے اندر لگیں گے تو یہ لیکیج نہیں ہو پائے گی۔ جب لیکیج نہیں ہوگی تو آپ کے پاس اضافی 20 سے 30 لاکھ گیلن پانی ہوگا، جس سے کراچی کے شہری انشاءاللہ مستفید ہو پائیں گے۔ میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق اس شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ کا اسٹیل مل کی دوبارہ بحالی کی خواہش کا اظہار، روس سے مدد بھی مانگ لی۔ روسی سفیر کی اگلے ہفتے ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کی یقین دہانی۔ مراد علی شاہ نے روسی سفیر سے ملاقات میں اسٹیل ملز کا نیا پلانٹ لگانے کی تجویز دے دی۔ کراچی کے لیے روسی الیکٹرک بسیں لانے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اسٹیل ملز کی دوبارہ بحالی کی کوشش ہے، روس سے بھی مدد مانگ لی۔ روسی سفیر کی ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کی یقین دہانی۔ مراد علی شاہ کی اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگانے کی تجویز۔ کراچی کے لیے روسی الیکٹرک بسیں لانے پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے روس کے سفیر البرٹ خوریف کی ملاقات ہوئی۔ روسی قونصل جنرل آندرے فیڈروف، تھرڈ سیکرٹری پاول ایمانوف اور مس ایکٹرینا شریک تھے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ روس سے تعلقات بہتر سے بہتر اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ صحت، تعلیم اور ثقافت پر تعلقات میں فروغ چاہتے ہیں۔ روسی سفیر نے بتایا کہ اگلے ہفتے پاکستانی اور روسی ماہرین اسٹیل ملز پر آن لائن تبادلہ خیال کریں گے۔ روس کے وفد بھی جلد اسٹیل ملز کا دورہ کریں گے۔ ملز چلنے سے معیشت کا استحکام اور روزگار بڑھے گا، ملازمین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اور روسی سفیر کا دو طرفہ تجارت بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ رشین کمپنیز کے ساتھ ڈیولپمنٹ چینل کے ذریعے بات چیت پر بھی زور۔ روسی حکومت کا سندھ میں ثقافتی سینٹر کے قیام کی خواہش کا اظہار۔ مراد علی شاہ نے کلچر اتاشی سے کوارڈینیشن کی یقین دہانی کرا دی۔ مراد علی شاہ نے بڑھتی آبادی پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس سے وزیر اعلیٰ نے خطاب میں شکوہ کیا کہ سندھ کی آبادی 55 ملین سے زائد جبکہ مردم شماری میں کم ظاہر کی گئی۔ بولے 2023 کی ڈیجیٹل مردم شماری میں آبادی کا خطرناک حد تک اضافہ دکھایا گیا ہے۔ بچوں کی جلد پیدائش اور صوبوں اور دیگر ممالک سے آنے والوں کی وجہ سے سندھ کو آبادی کے مسائل کا سامنا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ آبادی کا ایٹم بم، سندھ سرکار نے بھی سر جوڑ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاپولیشن ٹاسک فورس اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری سمیت افسران اور UNFPA سندھ اور USAID کے نمائندے شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ملکی آبادی میں تیزی سے بڑھتا ہوا اضافہ تشویشناک ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا از خود نوٹس اس معاملے میں رہنمائی کے طور پر موجود ہیں۔
हैं। 2023 के डिजिटल मर्दमशुमारी में आबादी का खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया। वजीर आला ने कहा कि आबादी में इजाफे की शरह 2.55% है, जिसके मुताबिक मजमूई आबादी 241 मिलियन है। सिंध की आबादी 55 मिलियन से जायद है, जबकि ये कहा जाता है कि मर्दमशुमारी में सिंध की आबादी कम जाहिर की गई है। शरह पैदाइश और हिजरत की वजह से सिंध की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। आबादी में तेजी से इजाफे की वजह से वसाइल महदूद होते जा रहे हैं। रोजगार के मौके, सेहत और तालीमी सहूलियात, खुराक और रिहाइश चैलेंज बनता जा रहा है। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाजुन पैदा करना जरूरी है। केएमसी के मातहत चलने वाले अस्पतालों की हालत बदलने लगी। लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 6 माह बाद एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलत बहाल हो गई। एमएस डॉक्टर बाबर खान के मुताबिक यौमिया 150 से ज्यादा एक्सरे किए जा रहे हैं। फरहान खान की रिपोर्ट। डेली के 50 एक्सरे हो जाते हैं यहाँ पे अभी। और इसके अलावा जो है किसी पेशेंट को अगर किसी लेबॉर्ट्री की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लेबॉर्ट्री की भी सहूलत शुरू कर चुके हैं। उसको भी 3 महीने हो चुके हैं हमारे पास माशाल्लाह। उससे तकरीबन 15 से 20 टेस्ट जो है हम कर रहे हैं, जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं। टेस्ट की सहूलत मिलने पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। ये हाथ पे बहुत दर्द हो रहा था कल रात से। मैं इधर आया, मतलब यहाँ डॉक्टर के पास में आया। काफ़ी डॉक्टर के पास हम चले जाते, पर वो पहले मेडिसिन देते, फिर बोलते इसके बाद एक्सरे कराओ, तो ये अच्छा नहीं है। पहले हम लोग यहाँ आए, मैं यहाँ आया, मैंने पहले यहाँ एक्सरे करवाई। ये डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने पहले एक्सरे करवाने के लिए कहा, एक्सरे देख के फिर ये मेडिसिन लिखवाएंगे, फिर कहेंगे कि ये मेडिसिन खाओ, इसके बाद आप सही हो जाओगे। मोहट्टा पैलेस में फैशन के रंग, मॉडल्स के रैंप पर जलवे, वेस्टर्न मलबूसात की नुमाइश, नित नए डिज़ाइन मुतारिफ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी, वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल, जामियात के वाइस चांसलर्स भी रौनक अफरोज हुए। आइए आपको दिखाते हैं हसीनाओं के रैंप पर जलवे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान एक मरतबा फिर सजने को तैयार। कराची में 14 नवंबर को 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब होगा। सियासी जमातों ने इंतखाबी मार्के में कामयाबी के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अवामी राबता मुहिम शुरू हो चुकी है। वोटर्स ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची के 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, सियासी जमातें तैयारियों के लिए मुतहर्रिक। जिला कोरंगी यूसी 6 लांडी के वाइस चेयरमैन की नशिस्त खाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उमेर अहमद दुरानी, तहरीक इंसाफ के तहसीन खान और जमात इस्लामी के अब्दुर्रहमान मद्दे मुकाबिल। शहरियों ने उम्मीदवारों के सामने मसाइल के अंबार लगा दिए। कहा कि इलाके में पार्क, सेवरेज, पानी और सड़कों की खस्ता हाली का सामना है। जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे अक्सर हमसे ये मुतालबा करते रहे कि इस पार्क को कह सकते हैं हम, समझे ना, ज़ाहिर बात है ये पार्क हो जाए तो बच्चों के खेलने की जगह, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा माहौल हो जाए, मगर ये इस पार्क क्या ये कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अभी अब हो गया था, हमने कुछ अर्से पहले इसको अभी सफ़ा करवाया खुद अपनी मदद आपके तहत। कोरंगी यूसी 7 वार्ड नंबर 1 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और TLP ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। यूसी 7 वार्ड नंबर 1 के जियाले और जमात इस्लामी के उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़म। इंशाल्लाह जो है कोशिश तो हमारी ये होगी कि हम सबसे पहले जो है हमारी सेवरेज का जो मसला है यहाँ पे 80% जो है हम हल कर चुके हैं, ठीक है, और मज़ीद इसकी तरफ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरी तरफ जो है हम जो है पेवर ब्लॉक का जो है काम हम जो है मज़ीद गलियों में हम करवा चुके हैं और मस्जिद की तरफ अभी हम और जा रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं और जब से ही आए हैं सिर्फ वादे करते हैं, हमारी किसी दरख्वास्त पे, किसी लेटर पे कोई अमल नहीं करते। तमाम फंड सिर्फ इन्होंने UC 8 के लिए रखा हुआ है। हमारा पूरा कोरंगी का पैसा वहीं पे लगाए चले जा रहे हैं। एक सेवरेज का पाइप नहीं दिया इन्होंने, ठीक हो गया। और इसमें हमने अल्लाह का शुक्र है कि हमने पूरे सेवरेज के मसाइल इनकी मदद के बगैर हल कर लिए अपने फंड से। मलिर टाउन की UC 9 बख्तावर में पीपल्स पार्टी के बाबर मक्सी, जमात इस्लामी के नौमान अहमद और TLP के सादिक पाशा के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। पोजीशन हमारी इन दोनों यूसीओ में, ये जो कि दोनों यूसी रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी के रही हैं, ये वार्ड भी पीपल्स पार्टी का रहा है, वो UC भी पीपल्स पार्टी की रही है। यहाँ जो UC है, UC ऑलरेडी हम बख्तावर जीते में, बख्तावर UC इससे पहले जब इकट्ठी थी बिटाईयाबाद के साथ, तो तब से वो पीपल्स पार्टी की UC रही है। मैं ये समझता हूँ इलेक्शन तो बहरहाल इलेक्शन होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये आसान इलेक्शन है और हम दोनों UC वार्ड का काउंसलर भी हम जीतेंगे और
यूसी में हम जीते। यूसी 5 मंगोपी टाउन के उम्मीदवार इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़म। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही। बड़ी तादाद में हमारे स्कूल में वालिदैन आते हैं, वो यही कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे आते तो हैं, बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो काम करने नहीं आते। जिला किमाली की यूसी 10 के वार्ड नंबर 4 में भी 5 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इलाका मकीनों ने सबसे बड़ा मसला पानी को करार दे दिया। हमारा इलाके में तो काफ़ी सारा मसाइल है, गैस का भी मसाइल है, गैस नहीं आते, लोगों को परेशानी है, और पीने का पानी का भी काफ़ी परेशानी है। परेशानी तो बहुत सारा है, अल्लाह बेहतर करे। जैसे तवक्को रखता है वो काम नहीं कर रहा है, तो मेरा गुजारिश यही है कि ये आवाम के फरियाद सुने और कम से कम ये काम करें, खुदा की खातिर करें। आखिर हम लोगों को ये तरसा तरसा के क्यों मारते हैं। शहरियों का कहना है कि इस बार वोट उसी नुमाइंदों को दिया जाएगा जो मसाइल के हल के लिए संजीदगी का मुजाहिरा करेगा। शहर कायद को खूबसूरत बनाने का मिशन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शारे फैसल पर ब्यूटिफिकेशन के काम का जायज़ा लिया और काम तेज़ करने की हिदायत की। मुर्तज़ा वहाब ने शारे फैसल के दौरे के मौका पर जारी ब्यूटिफिकेशन के काम का जायज़ा लिया और इंतज़ामिया को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दुनिया भर में एयरपोर्ट से मुल्क का चेहरा नुमाया होता है। एयरपोर्ट्स के अतराफ गुजरने वाली सड़कों पर ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। शहर भर की स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों को बेहतर किया जाएगा। फुटपाथ और पुलों से भी वॉल चॉकिंग का खात्मा कर रहे हैं। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक तबरेज़ मुसादिक मरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स को टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में तमाम शोबाजात के माहिरीन, कंसल्टेंट्स और फील्ड स्टाफ भी मौजूद था। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर तबरेज़ मरी ने कहा कि क्लिक प्रोजेक्ट के तमाम मंसूबे टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की फराहम करदा गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखा जाएगा। उनका कहना था कि आवाम की आरा और तजावीज़ को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए क्लिक प्रोजेक्ट के दरवाजे खुले हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से बक़ीत अतीक रहमती की मुलाकात। UAE और सिंध हुकूमत की जानिब से मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर तबादला ख्याल किया गया। अमाराती काउंसिल जनरल ने शर्जील इनाम मेमन को UAE के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत दी। आजिज़ जमाली रिपोर्ट करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुश्तरका इक़दार को मुस्तहकम करने और मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल ने शर्जील मेमन को अरब इमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दे दी। माशी और समाजी तरक्की और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। बक़ीत अतीक अल रोमेती इंसदाद मंशियात के लिए सिंध हुकूमत के इकदाम के मुतारिफ। कौंसल जनरल ने वाज़े किया कि सिंध के तमाम शहरों में मुफ्त तिब्बी कैंप्स लगाएंगे। सीनियर वजीर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सिंध के बामी बिरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। शर्जील मेमन ने सिंध के लिए UAE के इकदामात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। आजिज़ जमाली, सिटी 21। हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में केसेस की समाअत हुई और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। सानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बन्नी की बीवी आलिया सारिम शरीक मुलजिम करार। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया। PTI को बाग़े जिना में जलसे की इजाजत से मुतालिक दरखास्त की समाअत। PTI को कराची में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर शर्की की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। सिंध सैलाब मुतासिरा स्कूल्स की बहाली का केस। अदालत ने स्कूल बहाली से मुतालिक ठेके देने का अमल रोक दिया। अदालत ने हुकूमत सिंध और मुतालिका इदारों से तफसील भी तलब कर ली। न्यू कराची मीना बाजार की दरखास्तों पर समाअत। KMC वकील अदालत को प्लॉट की तफसीलात ना बता सके। असले के जोर पर शहरी से डकैती करने का मुकदमा। मुलजिम अली हैदर के पेश ना होने पर अदालत ने मुलजिम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुलजिम के जमानती को भी नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। इक़दाम कत्ल केस में अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम शहरियार की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जिना अस्पताल के ज्वाइंट
ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्रुरी के रूल्स बनाने का मामला। JPMC की डॉक्टर कौसर अब्बास हाईकोर्ट पहुंच गयीं। अदालत ने आइंदा समाअत तक सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। कराची की हाउसिंग सोसाइटियों में निजी अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इंकशाफ। अदालत ने किसी भी सोसाइटी में निजी अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती से रोक दिया। टेलीफोन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अदालत के हुक्म के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने नाजिर हाईकोर्ट को सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से चार्ज लेने की हिदायत कर दी। वेलकम बैक। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है। इंडेक्स पहली बार 94,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 12 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 86 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1300 रुपए कमी, 1 तोला सोना 2,77,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,37,911 रुपए हो गई। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में तेजी, हर रोज नया रिकॉर्ड बनने लगा। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 94,000 की सतह को अबूर कर गया। इंडेक्स 356 पॉइंट्स के इजाफे से 93,648 की सतह पर बंद हुआ। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अमीन यूसुफ का कहना है, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में शेयर्स की खरीदारी देखने में आ रही है। हुकूमत के अच्छे इकदाम के नतीजे स्टॉक मार्केट पे पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि फिक्स का पैसा यहाँ आ रहा है और प्लस एक रिफाइनरी पॉलिसीज़ का भी था कि आगे जाके आएगी, तो उसकी वजह से रिफाइनरी में भी आप देख रहे हैं बाइंग सुबह से देखने में आ रही है। ऑयल सेक्टर में तो आ ही रही थी और फार्मास्यूटिकल में भी बाइंग देखने में आ रही है। तो ऑब्वियसली लोग आ रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इसी वजह से प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा हो रही है। तो वही वाली बात है, जहाँ ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती तो फिर प्राइसेस तो ऊपर जाते। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। दिन के अख्ताम पर 453 कंपनियों के 81 करोड़ 51 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 37 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद की रही।